Okay, students. So in the last lecture, okay, I did second and third sum. Now continuing further with the fourth sum. Okay. So now read the fourth sum. The machinery account shows a debit balance of 15,000 on 1st April 95. This machine was originally purchased on 1st October 92 for rupees 20,000. Further, on 1st April 95, a new machinery was purchased for 45,000. On 1st July 95, he purchased the machinery costing 15,000 and spent 1,000 on its erection. On 1st Jan 96, the machinery purchased on 1st October 92 was sold for 12,250. On 31st March every year, depreciation is charged at 10% per annum on cost price. Prepare machinery account and depreciation account in the books of Prashad Kumar for 1 year ended 31st March 96. So they have given the information. I read the sum, and basically first we have to condense the sum. So I can condense the sum. Okay. Now we know how to do it. If you want to do by yourself, you can do it by yourself. Now they have said that the machinery account shows a debit balance of 15,000 on 1st April 95. So they have said that on 1st April 95, there is a balance of rupees 15,000. Okay. So they have said that on 1st April 95, there is a balance of 15,000. Now they have said that this machine was originally purchased on 1st October 92 for 20,000. ये purchase कभी किया था हमने? They have specifically said that it is being purchased on 1st October 92 for rupees 20,000. ओके. देखो अभी हर समय वो लोग क्या देते हैं, हमने जो परचेज किया वो देते हैं. ये समय उन्होंने क्या दिया कि 1st April 95 को बैलेंस था आपके पास 15,000. बैलेंस मतलब बैलेंस वही चीज का होता है जो हमारे पास है. ओके. तो बैलेंस वही चीज का होता है जो हमारे पास है. सो आई कैन से उन्होंने बोला कि 1st April 95 को बैलेंस मतलब हमारे पास कितनी वैल्यू था 15,000 एंड देन दे हैव सेड इट वाज परचेज्ड ऑन 1st October 92. Then they have said that on 1st April 95 a new machine was purchased for 45,000. ओके. आगे दिया है on 1st July 95 he purchased machinery costing 15,000 and spent 1,000 on its erection. और मशीनरी खरीदने के लिए एक्सपेंस करोगे तो मशीनरी में क्या होगा ऐड. Then they have told, I'm condensing the sum. They have said that on 1st Jan 96. So they have said that on 1st Jan 96 machinery purchased on 1st October 92 was sold for 12,250. उन्होंने बोला कि 1st October 92 ये वाला जो मशीनरी था वो हमने बेच दिया. कितने में बेचा? 12,250 में बेचा. Then on 31st March depreciation charged 10% per annum on cost price. So depreciation is 10% per annum on cost price. Cost मतलब original cost method. They have said prepare machinery account and depreciation account in the books of Prashad Kumar for 1 year ending 31st March 96. They have specifically said that for 1 year ending 31st March 96 means हमारा year end क्या होगा 31st March 96 एक ही year का बनाना है. तो year start होगा 1st April 95. So only for 1 year they have said okay तो 1st April 95 to 31st March 96 only 1 year. और फिर हम क्या करते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से ईयर में आता है. ये मार्केट अभी उन्होंने सिर्फ एक ही ईयर दिया है. ये सब ट्रांजैक्शन वही ईयर होंगे ना. They have said to prepare for 1 year. So obviously this all transactions will be relating to that particular year only. And what they have said is 1st April 95 को बैलेंस दिया 15,000. बैलेंस मींस इतना मशीनरी हमारे पास है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से. सो दे हैव सेड बैलेंस. बैलेंस मींस ओपनिंग बैलेंस. बैलेंस मींस ओपनिंग बैलेंस. तो ऑब्वियसली उन्होंने बैलेंस दिया है. इसका मतलब ये वैल्यू का मशीनरी हमारे पास स्टार्टिंग में 1st April 95 को. ओके. नाउ एंड व्हाट दे हैव सेड इज ये हमने परचेज किया था 92 में. सो ये परचेज किया था हमने 92 में, लेकिन एक्चुअली उन्होंने पूछा तो सीधा 95 96 का ही है. सो दे आस्क्ड फॉर 95 96. सीधा 95 96 एक ही का पूछा है. एंड दे हैव सेड दैट हमने परचेज कभी किया था 92 में. वो तो कॉमन सेंस का बात है. अगर हमने 92 में परचेज किया था ऑब्वियसली तो यहां पे 92 93 का डेप्री लग चुका होगा. 93 94 का भी डेप्री लग चुका होगा. 94 95 का भी डेप्री लग चुका होगा. उसके बाद ये बैलेंस आया होगा ना. इट्स प्योर कॉमन सेंस. उससे अगर आपको प्रूव करना है कि कॉमन सेंस से मैंने 1st October 92 में परचेज किया था 20,000. सो ऑब्वियसली इसमें मैंने डेप्री मारा होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट 92. सी हमें भले 95 96 का बनाना है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि हुआ क्या होगा. तो 92 को अगर हमने परचेज किया होगा 20,000 में 92 तो ईयर एंड हमारा 93 है 31st March 93. हमने कितना परसेंट डेप्री मारा होगा 10. ये 10% तो पूरे साल के 6 मंथ अक्टूबर टू मार्च 1000 तो बचा कितना 19,000. डेप्री लास्ट डेट है तो बैलेंस कौन सी डेट को आएगा फर्स्ट 92 93. सेकंड ईयर स्टार्ट होगा 93. वापस डेप्री चालू होगा. डेप्री कब लगेगा ईयर एंड पे 31st March 94 92 93 93 94 कितना परसेंट डेप्री है 10 और ओरिजिनल कॉस्ट मतलब इस पे 2000 बचा कितना 17,000. डेप्री है लास्ट डेट एंड बैलेंस है फर्स्ट डेट. फिर वापस डेप्री चालू होगा कभी ईयर के एंड पे 31st March 95 कितना परसेंट डेप्री है 10 और ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 बैलेंस आया होगा कौन सी डेट को 1st April 95 को. सो ऑब्वियसली उन्होंने सीधा 1st April 95 का बैलेंस दे दिया 15,000. 1st April 95 का बैलेंस दे दिया 15,000. राइट नाउ इसको पॉइंट आप समझो. ये मैंने सिर्फ प्रूव करके बताया कि उन्होंने जो अमाउंट दिया वो सब करेक्ट है. राइट नाउ उन्होंने स्ट्रेट 1st April 95 का दिया है बैलेंस. उनको 95 से ही बना है. उन्होंने बोला कि 92 में खरीदा